Good morning, students. This is chapter number 6, electromagnetic induction, and today's topic is Lenz rule. Before going to the Lenz rule, we should revise recall the Faraday's experiment, right? So this was the first experiment performed by the Faraday. Now see in this experiment, there are two coils. One is on left side and other one in right hand side. In both the coils there is no current at all. Reason is that there is no battery or cell applied on the coil. But when the magnet moves, both coils will have the current. Now see the direction of current. Once again, there is no current. In second coil there is also no current. So it is a simple coil without any current, without any magnetism. But when magnet moves towards the first coil, the current set up in the coil and the coil becomes the electromagnet whose north pole is towards right, whereas south pole in left hand side. Again see the experiment. There is no pole. This is simple coil and this is also simple coil. But when magnet moves, the coil becomes an electromagnet. So after this experiment, Faraday given the conclusion that whenever the magnetic flux changes with time, the induced current develop in the circuit, and since it is a coil, so it becomes an electromagnet whose north pole is here and south pole is here. Now observe in the second coil, this is also becomes north pole and this one becomes south pole, right? So what is the reason for development of the current or induction of current in both the coil? That is due to the magnetic flux, change in magnetic flux with time. But the induced EMF produced in the coil such that it can oppose the cause. And cause is that north pole is moving towards left, or we can say the south pole moving away from the second coil, right? It becomes the north pole, it will repel this north pole also. ये वाला जो north pole बना है इलेक्ट्रोमैग्नेट का, ये क्या करेगा? इस north pole को repel करेगा. क्यों? क्योंकि वो cause का अपोज करना चाह रहा है और cause क्या है? मैग्नेट का इधर आना. अब वो कॉज का अपोज करेगा, ऐसी डायरेक्शन में करंट चलेगी ताकि वो कॉज का अपोज कर सके. तो अपोज तभी कर पाएगा जब इधर नॉर्थ पोल बनेगा. सिमिलरली इसके लिए कॉज क्या है? साउथ पोल का दूर जाना. तो कॉज जा रहा है इधर की तरफ, साउथ पोल इधर की तरफ जा रहा है. तो ये इस तरीके से मैग्नेटाइज होगा ताकि ये अपोज कर सके, यानी इधर नॉर्थ पोल बनेगा ताकि वो साउथ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके. ठीक है. नाउ सी in this case south pole is moving towards left. तो यहाँ क्या बन गया? साउथ पोल. तो इसमें जो करंट जा रही थी उसकी ठीक अपोजिट डायरेक्शन हो गई करंट की इधर. क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी लूप में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट पास होती है वो क्या बनता है? साउथ पोल. अब अगर मैं यहाँ करंट की डायरेक्शन देखूं तो दिस इज क्लॉकवाइज, लेकिन यहाँ करंट की डायरेक्शन देखूं तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज. तो ये नॉर्थ पोल बन गया और ये साउथ पोल बन गया इसका अपोज करने के लिए. इसके लिए कॉज क्या था? इस सेकंड कॉइल के लिए नॉर्थ पोल का दूर जाना, ये इसका कॉज हो गया, नॉर्थ पोल का दूर जाना. लेकिन ये ऐसा पोल बनाएगा ताकि वो इसको अट्रैक्ट कर सके. तो साउथ पोल किसको अट्रैक्ट करता है? नॉर्थ पोल को. तो दिस इज द लेंज रूल, राइट. नाउ स्टेटमेंट ऑफ लेंज रूल. The direction of induced EMF or induced current is such that which opposes the change that produce it. जो भी इसको प्रोड्यूस करेगा उसका ये हमेशा अपोज करेगा
डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट या डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन वो होती है जहां से वो चेंज का या कॉज का अपोज कर सके। नाउ द if the current is induced due to change in current in the primary coil, then the induced current in such a direction that tends to now if the current induced due to change in current in primary coil, then induced current is such that which tends to stop the change। वो कोशिश करेगा कि कॉज का किसी न किसी तरीके से अपोज। ठीक है, अब ये जो लेंज रूल है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। और लेंज रूल क्या है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज ऑलवेज सच दैट फ्रॉम वेयर इट कैन अपोज द कॉज और चेंज दैट प्रोड्यूस इट। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। लेंज रूल वो बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, according to Lenz rule, the induced EMF opposes the change that produces it. It is this opposition against which we perform mechanical work and causing the change in magnetic flux. Therefore, mechanical energy is converted into electrical energy, and thus Lenz rule is in accordance to law of conservation of energy. However, the reverse, what will happen? Then little change in magnetic flux would produce the induced current, which would help the change in flux further, there producing the more current. The increased EMF would then cause further change in flux, and it would further increase the current, so on. This would create energy out of nothing, which would be वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए फिर से पहली वाली स्लाइड पे चलते हैं। ये जो मैग्नेट था इसको हम इधर पुश कर रहे थे, इधर ला रहे थे। ठीक है, अब ये बन गया था नॉर्थ पोल, दिस बिकम्स द नॉर्थ पोल। हम जब इसको इस तरफ लेफ्ट की तरफ डायरेक्ट करते हैं, ले जाते हैं, तो हमें वर्क करना पड़ता अगेंस्ट मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है ना, हम जो है मैग्नेट को पुश करने में मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं। क्यों करना पड़ रहा है हमको? क्योंकि ये अपोज कर रहा है। इधर जो नॉर्थ पोल बना था वो अपोज कर रहा है। तो हमारा जो वर्क है, हमारा जो मैकेनिकल वर्क है वो इस कॉइल के अंदर चला गया इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब हो गया कि मैकेनिकल वर्क का कन्वर्जन हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और वो क्यों हुआ है? क्योंकि लेंज रूल एग्जिस्ट करता है। रिवर्स अगर हम इसका देखें कि ना जी हम तो यहाँ पे गलत कहते हैं, यहाँ पे साउथ पोल बनना चाहिए, यानी क्लॉकवाइज करंट चलनी चाहिए यहाँ पे, तो क्या होगा? ये अपने आप ही मूव करने लगेगा। ठीक है ना, साउथ पोल क्या करेगा? नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो हमें वर्क करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई है बिना किसी मैकेनिकल वर्क के। तो दैट विल बी द वायलेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब लेंज रूल इज इन अकॉर्डेंस टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्रेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बेस्ड ऑन बोथ द लॉज। अब देखिए कल हमने कहा था E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। आज यहाँ पे हमने एक नेगेटिव साइन लगा दिया। देख रहा है इस नेगेटिव साइन को? ये नेगेटिव साइन लेंज रूल को बताता है। एंड डी फाई इज चेंज इन फ्लक्स माइनस फाई टू बाई माइनस फाई वन डिवाइडेड बाई टी। अगर कॉइल में n टर्न्स हो तो इसे n से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक, नाउ एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड करंट, ये तो था इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब करंट कितनी बनेगी? तो करंट इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई आर। ये तो क्या था? वोल्टेज, इंड्यूस्ड ईएमएफ। वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस इज करंट, तो इंड्यूस्ड करंट हो गई माइनस डी फाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, नाउ एक्सप्रेशन फॉर चार्ज। अब चार्ज के लिए क्या होता है? आई इक्वल टू क्या होता है? डी क्यू बाई डी टी। तो इसका मतलब मैं इसको डी क्यू बाई डी टी लिख लूंगा, राइट हैंड साइड वैसे रहेगी। फिर डी टी को मैंने ट्रांसफर कर दिया तो डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, यानी डी क्यू आ गया। तो क्यू की वैल्यू क्या होगी? आफ्टर इंटीग्रेशन वी कैन कैलकुलेट क्यू।
नाउ मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब आप इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? बाई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर दिया जाए, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? B इंटू ए। अब अगर आपने B चेंज कर दिया तो फाई चेंज हो गया, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ भी चेंज हो गया या इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ गया। द मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड एंड हेंस द ईएमएफ विल इंड्यूस इन द करंट। ठीक है ना? इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट तभी आती है किसी सर्किट में या किसी कॉइल में जब उससे लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा हो। और फ्लक्स दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक बी पे एक ए पे। आपने कल पढ़ा था फाई इक्वल टू होता है बी इंटू ए। ठीक है, तो बी को चेंज करके हम इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज कर सकते हैं। नंबर 2, बाई चेंजिंग द एरिया। अब अगर आपने एरिया चेंज कर दिया तो क्या होगा? नंबर ऑफ लाइंस इंक्रीज या डिक्रीज होंगे। जैसे अभी आप देख रहे हैं इस लूप से लिंक कितनी लाइंस है? 1 2 3 4। दीज आर द मैग्नेटिक लाइंस इन इनवर्ड डायरेक्शन। अब अगर ये कॉइल मूव करती है तो देखिए कितनी लाइंस जो है इससे पास हो रही है। ठीक है, तो बाई चेंजिंग द एरिया वी कैन चेंज द फ्लक्स एंड हेंस द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल प्रोड्यूस। क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ तभी आता है जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेज आ रहे हो। तो डी फाई इज इक्वल टू बी इंटू एरिया। नाउ व्हाट इज एरिया? दिस इज v इंटू डेल्टा टी। अब आपको लग रहा होगा ये कैसे हुआ? देखिए ये है लेंथ और ये हो गई इसकी ब्रेथ, वेलोसिटी इंटू टाइम टेकन यानी ब्रेथ। तो इस ब्रेथ को हमने लेंथ से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? एरिया। और b ऑलरेडी है यहाँ पे। अब E इक्वल टू होता है डी फाई बाई डी टी, है ना? तो इसे आप क्या करो? dt से डिवाइड कर दो तो आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। यानी आप एरिया चेंज करके इंड्यूस्ड ईएमएफ को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मोशनल ईएमएफ, क्योंकि ये मोशन से आया है, मोशन ऑफ द कंडक्टर से आया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेंज रूल द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट विच कैन अपोज द चेंज और कॉज ऑफ चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक, therefore this motion of the loop is to be opposed and we can apply the Fleming left hand rule। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल क्या है। आपने लेफ्ट हैंड का थंब, सेंटर फिंगर और फोर फिंगर स्ट्रेच करके 90 डिग्री पे ले आए, यानी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो सेंटर फोर फिंगर क्या दिखाती है? मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स कौन दिखाता है? थंब। और सेंटर फिंगर क्या दिखाएगी? इलेक्ट्रिक करंट। तो इससे हम फोर्स का पता लगा सकते हैं। हम ये राइट हैंड थंब रूल की बात करें। अब यहाँ पे ये जो राइट हैंड रूल की बात कर रहे हैं, यहाँ जो इलेक्ट्रिक करंट है बेसिकली दिस इज इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन है वो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से डिटेक्ट की जाती है। ठीक, तीसरा कारण है इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज करने के लिए, तीसरा फैक्टर होता है बाई चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल। देखिए कल हमने कहा था फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अगर हम थीटा भी चेंज करते हैं तब भी इंड्यूस्ड ईएमएफ में चेंज जाएंगे। कैसे? देखिए ये कुछ लाइंस थी पास हो रही थी इससे, कॉइल से, रेक्टेंगुलर लूप है इससे पास हो रही थी। ठीक है, ऑल द लाइंस वर पासिंग परपेंडिकुलरली फ्रॉम द सरफेस। लेकिन अब आपने इसे चेंज कर दिया तो क्या होगा? ये लाइन इससे परपेंडिकुलर पास ही नहीं हो रही, बल्कि इनका कंपोनेंट पास हो रहा है। ठीक है ना, ये जो कंपोनेंट होगा बी कॉस थीटा वो पास हो रहा है इसमें। तो अब हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आ गई फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, और अगर इसमें टर्न एन हुई तो इसको हम एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस इज द नंबर ऑफ टर्न। अब आप क्या करो? थीटा का मतलब हो गया ये एंगल, और ये एंगुलर वेलोसिटी के साथ इसका रिलेशन होता है थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। इस थीटा की वैल्यू ओमेगा टी यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो फाई आ गया हमारे पास एन बी ए कॉस ओमेगा टी। अब मुझे इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए। इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है डी फाई बाई डी टी एज पर द फैराडे लॉ। तो हम क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये डिफरेंशिएशन करके इतना आ गया तो हमारे पास E इक्वल टू बन गया एन बी ए साइन ओमेगा टी। अब ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू है एन बी ए ओमेगा, इसकी जगह हमने E नॉट रख दिया।
तो हमारे पास आ गया E = E0 sin ओमेगा टी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी